Good evening friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Friday, that is 11th of August 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed Wednesday for today, right? That is for Thursday. So we discussed that कि जब तक RBI policy खत्म नहीं होती, we will take any trade only after 11 AM, right? Closer to 11:15. And we discussed that if a negative scenario comes both in Nifty and Bank Nifty में only if 30 minutes of candle, right? कि अगर 30 minutes of candle can close, अगर 30 minutes of candle can close below this consolidation, एक तो सबसे पहले it should come below this downward trending line जो कि आई, और second thing after 11 am यानी ये 30 minutes की candle which will close at 11:15, right? After 11 am it should be able to come below what? Below 19,550. You may see this candle's closing is at 19,534, right? It is at 19,534 जो इसके नीचे हुई थी. तो यहां से if anyone entered, our SL was क्या कि अगर 19,600 हिट हो जाए we will exit, और वापस अगर मिल जाए opportunity only then we will re-enter. You may notice this candle, right? It went all the way high towards 19,599, not at 19,600. एक पॉइंट से क्यों ना हो, SL was missed, right? यहाँ पे नहीं था, और यहाँ से नीचे आए. That doesn't mean कि हमें 19,450 की opportunity मिली, but again from 545, 550 के रेंज से it again came all the way down to 19,503, right? So it came all the way down towards here. यहाँ पे वापस एक अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा नहीं थी था कि अपॉर्चुनिटी नहीं थी. ऑफ कोर्स अगर if it would have went all the way towards 19,600 exact at that point, तो SL trigger हो गया रहता, and this would have been the point to exit. There is no doubt about it. But it didn't came closer, but it didn't hit the SL, right? It didn't hit the SL at 19,600 and went all the way down here. That was the reason. If we take it back on 5 minutes just to see how the volatility was today, right? You may notice that we went all the way up towards 620, 630 का है, वहां से we came all the way down to 19,495, वहां से again we came at 19,600, from there again at 19,503, and finally we closed at 19,543, right? We closed at 19,543. But this was an entire volatile day. Just in order not to be trapped in it, we decided that we will trade after 11, right? Where there will of course कि ये पहली opportunity अभी यहाँ पे किसी ने सही trade मिला हो, one would have earned. But again, if you enter after 11, there was also an opportunity for downwards frame, right? For the downwards frame, that was the thing. In Bank Nifty also we discussed that only if 30 minutes of candle can close below 19,500. Now you may notice कि ये जो 1045 यहाँ पे दिख रहा है, this candle which closed at 11:15, right? You may notice that कि इसका लो क्या अभी 44,506, but again it closed above 44. What? It closed at 44,585. See, if you see each and every candle here, this was the candle for 30 minutes which was able to break 44,500. Now if you entered here, यहाँ से 44,400 तक की opportunity थी, right? It went all the way lower toward 44,418. But again, look at the closing. The closing is again at 44,542, making it a doji. और इसके बाद के सारे कैंडल्स आज डोजी में ही क्लोज हुए, राइट? इसके बाद के सारे. दैट वाज द रीजन वी वांटेड कि 30 मिनट्स ऑफ कैंडल शुड क्लोज बिलो 44,500. बट अगेन इफ यू वुड हैव कैप्चर्ड दिस अपॉर्चुनिटी सीइंग इट ऑन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का फ्रेम, इट इज वेल एंड गुड. There is no doubt about it. It is well and good. But end of the day, it was still a range bound zone, right? It was still a range bound zone. So that was overall analysis for the day. But what about tomorrow? कल के लिए क्या for Friday? So now if we come back on days frame, you may notice that कि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल के पास ही वापस आज की डेज की कैंडल क्लोज हुई है, और कल का when it was green hammer, today it is in a red candle, right? Today it is in a red candle. If I take it back on 15 minutes, let me take it back on 15 minutes. Okay, we are back on 15 minutes. You may notice that कि हम वापस से इस लाइन के पास ही है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह अंदर है, पर ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह ऊपर है, right? We are back to this line. And another thing is, this line is the line I had taken from the low of Thursday. जहाँ पे you may notice what is this first low? This low is at 19,296. ये लो कहाँ पे? This is at 19,436. उसके बाद का लो कहाँ पे? यहाँ पे it is at 19,466, और इसके बाद का कहाँ पे? 19,494, right? So ये थर्सडे का है, उसके बाद ये फ्राइडे का लो है, फ्राइडे के बाद दिस लो केम क्लोजर टू वेडनेसडे, और आज उसके बाद ये थर्सडे का है. सो सिंस 3rd of August दिस इज समवेयर एट हायर लोज, राइट? ये तो हायर लोज बन रहा है. बट अगेन हमने स्विंग हाइज ब्रेक नहीं किए, एंड वी आर स्टिल बैक टुवर्ड्स दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जो कब से चल रही है, which is from Friday 21st of July, यहाँ से which is lower highs and lower lows, right? But 3rd of August से this is higher lows, right? So we are somewhere in between of this. Another thing that you may notice, एक और चीज if you may notice,
फ्रॉम मंडे वी हैव बिन इनटू दिस, फ्रॉम मंडे नहीं, फ्रॉम फ्राइडे ऑल्सो वी हैव बिन, यानी ये एक्सपायरी के लिए वी हैव बिन इनटू 300 पॉइंट्स का रेंज जो फ्राइडे से शुरू हुआ, विच वॉज क्लोजर टू 19400 के पास था, एंड दी हाई वॉज एट व्हाट 19650. वी मे कंसिडर 19700 ऑल्सो, राइट? ये स्ट्राइक जो पुराना रेजिस्टेंस था, दिस वॉज क्लोजर टू 19700 एंड दी लो वॉज क्लोजर टू 19400. इसी 300 पॉइंट के अंदर दिस द एक्सपायरी हैज एंटायरली बीन, राइट? और उसके ऊपर से पिछले 2-3 दिन तो विच हैज बीन ऑलरेडी इनसाइड द 100 to 150 पॉइंट्स का रेंज. So these are two important strengths for the upcoming expiry, right? Till the upcoming Thursday. तो एक है 19700 के पास एंड सेकंड इज एट 19400. इसी के बाहर इफ द प्राइस एक्शन गोज ऑन आर्ली फ्रेम्स और डेज फ्रेम्स, इसके यानी एक बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल अगर इसके बाहर जाए, राइट? इफ अ मेजर टाइम फ्रेम कैंडल इज एबल टू क्लोज आइदर अबव 19700 or below 19400, then we may see a good move, right? Then we may see a good move. We will discuss bank nifty too, but let us first focus on nifty. तो सबसे पहले if an hourly again can close above 19700, as we are discussing since yesterday also, only then we will plan any long. Till then we are not planning any long. क्यों? क्योंकि वापस 19600 के जोन पे क्या है? This resistance is again standing here, right? This resistance is again standing here, and again there is a huge call writing at 19600 का strike. That is the reason यहाँ पे we do not want any call opportunity. Considering all these factors, now what for tomorrow? What for Friday, right? Now if we open gap up, gap up खुलते और कोई भी gap up from 19550, if it comes closer to 19650 या फिर 19660, 680, इस रेंज में कोई भी gap up हो जाए, I will at least wait for 30 minutes. 30 मिनट्स रुक के ऐसे ही नहीं कि सीधी कैंडल रेड हो गई तो इसके अंदर वापस हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं. Let it come red and only if it is again coming inside this downward trending channel. If it becomes red and if I see any price action even on 15 minutes का कैंडल, let it open gap up 640, 650, 600 के पास कहीं पे भी गैप अप हो जाए, इसके ऊपर 600 के ऊपर ये रेंज पे कहीं पे भी गैप अप हो जाए, गैप अप होके ओनली इफ इट इज एबल टू कम इनसाइड दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, राइट? अगेन इफ इट इज एबल टू कम इनसाइड दिस चैनल, नाउ दिस चैनल इज अगेन यहां से अगर वापस नीचे जाए तो 540 वगैरह के रेंज में, इसके नीचे वापस जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट पोजीशन, राइट? इफ देयर इज अ गैप अप, एनी गैप अप अबव 600, 640, इस रेंज में कहीं पे भी गैप अप हो जाए, विद दैट गैप अप ओनली प्राइस एक्शन इज कमिंग हियर. फिर यहां से क्यों नहीं, यहां से रेड बन गई, यहां से वापस नीचे आएगी, देन दिस प्राइस एक्शन कैन अगेन एक्ट एज सपोर्ट और यहां से वापस उल्टे फुल्टे पंप ला सकता है, राइट? दैट पंप कैन अगेन हिट द एसएल. दैट इज द रीजन यहां पे गैप अप हो जाए और गैप अप होके वापस इसके अंदर आ रहा है, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड फॉर पुट अपॉर्चुनिटी, राइट? इसके अंदर आके आ जाए. फिर व्हाट अबाउट दिस लाइन का वी विल कंसीडर एट फ्लैट, पर गैप अप होके इसके अंदर आए, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, इट कैन ब्रेक आल्सो, राइट? दैट इज गैप अप सिनेरियो. व्हाट इफ गैप अप खुल के ऊपर जाए, एंड इफ इट इज एबल टू सर्वाइव अबव 19700 ऑन आर्ली, अगर गैप अप हो जाए 600 वगैरह के पास, 600 के रेंज के पास, 640 के रेंज के पास, 650 के रेंज के पास, एनी गैप अप विच इज अबव 600, only and only if it is able to survive above 19700 on hourly close. When I say able to survive above 19700, it needs to survive with this type of candle, this type of candle, this type of candle, or even this type of candle. Why it is taking red? Let me make it black. Okay, yeah, now it is black color. If it survives with this type of candle, even this type of candle, this type of candle, any hourly candle which is closing above 19700 with the candles that we have marked, right? With the candles that we have marked, यहाँ पे आके वापस ऐसी अच्छी खासी रेड बना दे, देन वापस वहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है. इसलिए नॉट दी रेड क्लोजिंग, ऐसी रेड बन जाए तो क्या फायदा, राइट? सो द ग्रीन कैंडल्स दैट वी हैव मार्क्ड, सी देयर आर सो मेनी ग्रीन कैंडल्स हियर, राइट? इसमें से कोई भी ऐसे कैंडल से क्लोजिंग दे दे या फिर ऐसी हैमर जैसी भी बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. द कैंडल्स दैट वी हैव मार्क्ड इन दिस वे ओनली इफ आर्ली कैन क्लोज अबव 19700, तो उसका हाई वापस कोई 15 मिनट्स तोड़ दे, फ्रॉम देयर वी आर इंटरेस्टेड टू टेक द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, ओनली इफ आर्ली कैन क्लोज देयर, राइट? Till then we are not interested in taking any long opportunity. Why? Now because we are again back into our downward trending channel, right? इसी के अंदर है. और अभी दूसरी बात, that is the gap up scenario. What if we open flat? अगर फ्लैट खुलते, now we know कि 3rd of August से ये एक लाइन जा रही है, राइट? ये जो लाइन है जो प्रोटेक्शन दे रही है निफ्टी के प्राइस एक्शन को, जिसकी वजह से द प्राइस इज ऑलवेज पंपिंग अप सिंस लास्ट मंडे, सिंस फ्राइडे ऑल्सो इट इज पंपिंग अप एंड अप, एंड दी स्विंग्स आर बिकमिंग हायर लो स्विंग्स, राइट? हर एक स्विंग हायर लो स्विंग बन रहा है. इसीलिए अभी इफ वी ओपन फ्लैट यानी क्या, 30-40 पॉइंट्स ये रेंज में ऊपर, 30-40 पॉइंट्स ये रेंज में नीचे, कहीं पे भी खुल जाए, तो फ्लैट खुल के भले ही ऊपर जाए,
आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, राइट। फ्लैट खुल के ऊपर चले जाए, ऊपर जाके अगर फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ यानी क्या 12 PM के पहले, 12 PM के पहले only and only if an hourly can survive of this, then जैसे गैप अप के लिए भी है कंसिडर्ड लॉन्ग, वैसे अभी भी कंसिडर करेंगे, राइट, इफ hourly survives। पर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वापस नीचे आए, वापस नीचे आए, और ये जो लाइन थी which was making higher lows, right, which is making higher lows since Friday, ये लाइन का अगर लो तोड़ दे, ये सपोर्ट, राइट, ये सपोर्ट ही तोड़ दे, ये सपोर्ट कहां पे आ रहा है, लेट मी सी विद क्रॉसर, ये सपोर्ट कहां पे आ रहा है, दिस सपोर्ट कम्स क्लोजर टू 19490, ओके। So it is 19493, we will consider 19490. So again, if we open flat यानी 30-40 points ऊपर, let me erase all these lines, okay, flat यानी अगर ऊपर खुल के वापस अगर 19490 यहां से ब्रेक कर दे, राइट, 19490 ब्रेक कर दे, then I'm interested in taking any put opportunity। यहां से वापस पुट अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है, और यहां से वापस अगर ये इस लाइन के पास आए, वी विल एग्जिट, राइट, इस लाइन के पास अगर आ जाए, वी विल एग्जिट, और वहां से वापस अगर लो ब्रेक करता है, ओनली देन वी विल कंसिडर अनदर अपॉर्चुनिटी। दिस वी विल डू ओनली ट्वाइस, राइट, दो से ज्यादा बार नहीं। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ऊपर जाके वापस 19490 ब्रेक करता है, while breaking again this type of candle, the candles that we keep on marking in every videos, right, this type of red candle ऐसे बना के ब्रेक कर दे, अगर ब्रेक करते वक्त ही ऐसी हैमर बना दे, राइट, रेड भी हो या ग्रीन भी हो, ऐसी हैमर बना दे, देन वी विल नॉट री एंटर। तो उसको वहां से वापस पंप होने देगी, थोड़ा पंप होके वापस ब्रेक करता है, ओनली देन वी विल एंटर, ओनली देन वी विल एंटर। ये तो फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के सीधा ही नीचे आए, सीधा ही नीचे आए, बट दिस टाइप ऑफ कैंडल्स, ये जो कैंडल मार्क किए, ऐसे कैंडल्स के साथ, ऐसे कैंडल के साथ अगर 19490 ब्रेक करता है, दैट इज इन फ्लैट सिनेरियो, लेट इट ओपन 30-40 पॉइंट्स अप या 30-40 पॉइंट्स नीचे, ऐसे करके ये 19490 का सपोर्ट ब्रेक करता है, फिर क्या हो जाएगा, फिर देयर इज ट्रिपल कंफर्मेशन। व्हाट इज ट्रिपल कंफर्मेशन? एक तो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के अंदर भी है, सेकंड ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जा रही थी, ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जा रही थी, इसका सपोर्ट यहां से वापस ब्रेक कर दिया है, दैट इज सेकंड। और थर्ड क्या है कि यहां पे जो प्राइस एक्शन हुआ था, ये जो प्राइस एक्शन हुआ था उसके नीचे भी जा रहा है, राइट। इसीलिए नाउ इफ इट ब्रेक्स 19490 विद द कैंडल्स दैट वी मार्क्ड अर्लियर, राइट, विद द कैंडल्स दैट वी मार्क्ड, उसके साथ अगर 19490 ब्रेक होता है, देन वी आर इमीडिएटली इंटरेस्टेड इन टू टेक द पुट टिल द अपॉर्चुनिटी विद टिल 19420, राइट, यहां से लेके एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट, वापस से इफ स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, वी विल स्टे इन द ट्रेड। यहां पे देखेंगे, यहां से अगर पंप पुराना स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, वी विल एग्जिट, एटलीस्ट 70% वी विल एग्जिट, 30% वी विल कीप। यहां से वापस अगर ब्रेक करता है तो वी मे गेट टारगेट टिल दिस रेंज आल्सो, राइट, टिल द रेंज ऑफ 19320। अगर 420 भी ब्रेक करके, इफ इट कीप्स लोअर हाइज एंड लोअर लोज, दैट इज द थिंग, दैट इज फ्लैट सिनेरियो। व्हाट इफ वी ओपन गैप डाउन? अगर कोई भी गैप डाउन सीधा 19490 के पास होता है, 19490 या 19500 के रेंज के पास हो जाए, 500 या 490 के पास कोई भी गैप डाउन हो जाए, और वो गैप डाउन के बाद इफ फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ कैंडल टर्न्स दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ, वापस वही रेड्स, द रेड्स दैट वी कीप ऑन मार्किंग इन एवरी वीडियोस, राइट, दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसी रेड बना दे, या फिर ऐसी रेड बना दे, ऐसी रेड बना दे, ऐसी भी रेड चलेगी, राइट, दिस टाइप ऑफ रेड, अगर ऐसी रेड के साथ 19500 के पास बनाती है, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल भी, उसका लो ब्रेक हो जाए, वी आर अगेन इमीडिएटली इंटरेस्टेड टू टेक द पुट एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, वी विल स्टे इन द पुट। स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट, वापस से इफ स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, वी विल स्टे इन द ट्रेड, दैट इज अगर कोई 19500 के पास हो जाए, उससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, उससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, अगर इट इज क्लोजर टू दिस स्विंग, राइट, वेयर इज दिस स्विंग, उससे भी बड़ा, यानी 19460 या 19460 या 440 वगैरह के पास गैप डाउन हो जाए, ठीक है, अगर 460 440 के पास गैप डाउन हो जाए, इस रेंज के पास अगर गैप डाउन हो जाए, देन वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी दी प्राइस एक्शन ओनली इफ इट इज गोइंग फॉर दिस वे, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ऐसा प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज 30 मिनट्स के बाद, राइट, और उसका लो ब्रेक होता है, ओनली देन वी विल री एंटर, राइट, ओनली देन वी विल एंटर इन दैट ट्रेड। अगर स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी विल एग्जिट, वापस से ये स्विंग लो ब्रेक होता है, ओनली देन वी विल री एंटर, सी वी विल अगेन गेट दैट अपॉर्चुनिटी, दैट इज अगर बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाए। व्हाट इफ गैप डाउन होके पहली कैंडल ग्रीन बन जाती है, तो लेट इट बिकम ग्रीन, लेट इट पंप अप, और पंप अप होके वापस से उसका स्विंग लो, ओपनिंग लो तोड़ दे विद द कैंडल्स दैट वी कीप ऑन मार्किंग, वैसा ओपनिंग लो तोड़ दे, देन वी विल consider the shorting opportunity, right, then we will consider the shorting opportunity, that is अगर कोई भी कैंडल ग्रीन बन जाती है after the gap down। So we discussed all the scenarios for flat, gap up as well as gap down। What about bank nifty? Coming back in bank nifty now, taking it back on days frame, just a minute।
So okay, you may notice that कि आज भी भले today we were able to break the Friday का low, right? Friday का low we were able to break, but again we are inside the range only. Closing जो है वो इसके अंदर है. Another thing is you may see there is a head and shoulder forming in Bank Nifty, right? If you notice this, ये एक shoulder है, this is a head and this is another shoulder, right? So that is the reason. अब वापस जब ये low break हो जाए, we may get very good opportunity at downside, right? जहाँ पे एक बहुत बड़ी opportunity हो सकती है, which will be more than 500 points and all. But that we will discuss when. Let us take it. Let us see, come back at 15 minutes and we will discuss Bank Nifty. Now at 15 minutes you may notice कि we were not able to break this range, right? ये range ऊपर साइड पे 45 135 के पास ब्रेक कर ही नहीं पाए. और दूसरी बात, in Bank Nifty also this is the downward trending channel which is exactly similar to Nifty. Nifty की तरह ही यहाँ पे भी downward trending channel है. इसीलिए अब Bank Nifty में the thing is again saying only and only if Bank Nifty can survive above 45 135 with a day's closing. यहाँ पे days closing क्यों? क्योंकि we are inside the line and we are clearly following lower highs and lower lows. अभी वापस 45 135 के ऊपर डेज क्लोजिंग ही हो जाए, ओनली देन वी विल कंसीडर. नहीं तो क्या हो जाएगा, निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी इज मोर वोलेटाइल देन निफ्टी. यहाँ पे आ जाएगा सो यहाँ से वापस सेलिंग आ सकते हैं. इसलिए एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली अबाउट 45 135. बट इफ वी ओपन गैप अप, कोई भी गैप अप अगर ये स्विंग के पास हो जाता है, राइट, today's closing is at 44,544. Sorry, it is at 44,544. तो यहां से कोई भी गैप अप which is inside 44,836, ये रेंज के पास कोई भी गैप अप हो जाए और वो गैप अप में पहली 15 मिनट्स की कैंडल अगर ऐसी रेड बन जाए, अगर पहली 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी रेड बन जाए, दिस टाइप ऑफ रेड, इतनी बड़ी रेड भी बन जाए, ऐसी रेड भी बन जाए, ऐसी रेड बन जाए, द कैंडल्स दैट वी आर मार्किंग, राइट, ऐसी रेड बन जाए, ये रेड भी चलेगी, ऐसी रेड बन जाए, ऐसी रेड अगर यहाँ पे कोई भी फर्स्ट 15 मिनट्स में बन जाए और उसका लो ब्रेक हो, यहां से वी विल इनिशिएट अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, आज की क्लोजिंग के लिए. ऐसे जाते वक्त अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, वी विल एग्जिट. वापस से लो ब्रेक हो जाए विद द सेम कैंडल्स ओनली, देन वी विल री एंटर फॉर टुडेज क्लोजिंग का टारगेट. व्हाट इफ पहली कैंडल अगर ग्रीन बन जाए, पहली 15 मिनट्स की ग्रीन बनती है, लेट इट बिकम ग्रीन, लेट इट पंप अप होके वापस से अगर लो ब्रेक करे, वो पहली 15 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक करे, ओनली देन वी विल रिकंसिडर, राइट, ओनली देन वी विल रिकंसिडर एंटरिंग. दैट इज गैप अप सिनेरियो. व्हाट इफ वी ओपन फ्लैट, अगर फ्लैट खुलते ही इस रेंज के आसपास कहीं पे भी खुलते हैं, फ्लैट खुल के अगर आज का लो ब्रेक कर सके, आज का लो कहां पे, today's low is at 44,418. So we will consider 44,400 ही. फ्लैट खुल के अगर 44,400 ब्रेक कर सके, अगेन विद द सेम कैंडल्स दैट वी मार्क फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो, ऐसी कैंडल के साथ अगर 44,400 ब्रेक कर सके, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन दी अपॉर्चुनिटी. ब्रेक करते वक्त वो कैंडल का जो भी हाई होगा उसी को एसएल पकड़ेंगे, उसी को एसएल पकड़ के एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, वी विल स्टे इन द ट्रेंड. स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट. वापस से अगर लो ब्रेक होता है, देन वी विल री एंटर, राइट, देन वी विल री एंटर. दैट इज फ्लैट खुल के अगर नीचे जाए और 44,400 ब्रेक करे, कोई भी गैप डाउन अगर हो जाए, एंड दैट गैप डाउन इज, इफ दैट गैप डाउन इज बिलो 44,500 के पास हो जाए, अगर 44,400 के नीचे ही हो जाए, 44,400 के नीचे ही हो जाए विद द सेम कैंडल्स दैट वी मार्क, वही सारे रेड जो पहले भी मार्क किए थे, 44,400 के नीचे अगर ऐसे रेड बन जाते, देन वी आर क्लियर कट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द पुट, राइट, देन वी आर इंटरेस्टेड क्लियर कट टू टेक द पुट. अगर पहली कैंडल ऐसी रेड बन जाए, अगर वो भी ग्रीन बन जाए और वापस पंप करके वापस से स्विंग लो ब्रेक करे, देन वी विल अगेन री एंटर, राइट. अगर पंप करता है, लेट इट गो अप, ऊपर जाके वापस लो तोड़ता है, ओनली देन वी विल री एंटर. दैट इज गैप डाउन हो जाए. अगर 44,400 के ऊपर अगर कोई भी गैप डाउन रहता है, that is closer to 500 वगैरह, if it is closer to 500, if it is closer to 480, if it is in the range of what, if it comes in the range of flat itself, again we will wait for then 30 minutes रुक के, only if the price action breaks the low, यानी कैंडल का लो ब्रेक कर दे, only then we will re-enter, right. अगर ऊपर जा रहा है तो let it go up, ऊपर जाके वापस लो ब्रेक करता है, only then we will re-enter. That is the overall scenario in Bank Nifty. On that note, we have covered both Nifty and Bank Nifty for tomorrow's analysis. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.